So before I start my presentation, I like to thanks to the ma'am for giving me opportunity to have a interaction with the participants from the different streams. So I will try to make the lecture as simple as possible for me so that it would be beneficial for you to understand what exactly the things I have been trying to cover. Wherever you feel any doubt, any confusion, you can interrupt me because I would love to have interaction from your side. If I keep on talking about the things that I have to cover, it may like that it is only one way communication that will take place. It is better to have it both way the conversation that we can have. So I will talk about some basic understanding what exactly the design it has been when we are going to conduct any research, what are the different scales that we can use irrespective of either we have been going to conduct a qualitative research or a quantitative research, what those parameters stands for and how we have been going to use those scales, the measurements, the variables in the SPSS software that we have been going to use normally in the social sciences that we are going to use for the statistical analysis purpose. So, in the beginning, I will talk about first with some basic understanding what is exactly the design it has been. Why we have been going to conduct a research? There are two reasons due to which the research that would have been conducted by the researcher either for the academic purpose or other way around it is for some specific the research problem that industry the organization that they would have been facing and they are more likely to find out a solution. So practically we are having a two types of research, basic research and the applied. Whatever the research paper being a academician and a researcher that we have been keep on writing or the PhD work, the dissertation, the MPhil that we have been going to do, all are being going to be a part of the basic research. All such kind of research are basically for the academic purpose. We are not going to find out some specific solutions for the any problem that company that they would have been facing. But if any industry, any company, they have been going to conduct a research in order to find out a solution for the kind of problem that they would have been facing, they are going to use the applied research. So irrespective of either we have been into this applied and the basic research, we are having a two types of research, exploratory and the conclusive. When a researcher, they will go for the exploratory, when a researcher, they will go for the conclusive that will depends upon the research problem that would have been identified by us. Say for example, being a researcher, I have to find out a solution. I have to conduct a one research, but I am not having any basic understanding regarding the research topic that would have been chosen by me for conducting the research. Here I will go for the exploratory. I have to explore the new things. I have to explore the more informations to find out the solutions or for conducting the research. When the things are not more clear to me, I will go for the I will go for the exploratory research, which is more likely a kind of qualitative research that I have been going to do. I give you one small example. Say for example, there is a one company, they have been facing one problem. Okay, so for example, any organization, say my Punjabi University Patiala, they are facing a problem regarding why the admissions that would have been going down. The number of different reasons that would be there. It might be because of the infrastructure, it might be because of the hostels, it might be because of the fees are very high. It may be because of the it is not approachable. The number of different reasons that would have been there. But here, reason being the university, they have to find out the reasons, but they are not having clarity out of the number of different reasons which one is the main and the core reason due to which they have been facing such kind of problem. So they are going to explore the qualitative research, means they are going to explore the research problem that they would have been going to face.
ठीक है. So once the exploratory research that would have been conducted by them, they are going to find out the core issue, the core problem that would have been there for the university. So in order to find out the core reason, we have been going to conduct the conclusive research. Exploratory research is basically a base for developing the hypothesis. Hypothesis are we are going to assume the things. ये भी रीजन हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है. ठीक है, द नंबर ऑफ रीजन हमें पता लग गई, बट इनमें से कौन सा एक्चुअल रीजन है उसे फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू कंडक्ट द कंक्लूसिव रिसर्च. सो सिंपली इरिस्पेक्टिव ऑफ मैं अप्लाइड या बेसिक रिसर्च कर रहा हूं, एक्सप्लोरेटरी में वहां पे रिसर्च करूंगा जहां पे मुझे क्लैरिटी नहीं है रिगार्डिंग द रिसर्च. कंक्लूसिव रिसर्च वहां पे अप्लाई करूंगा जब मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है. नाउ आई हैव टू टेस्ट द थिंग्स दैट आई हैव बीन गोइंग टू स्टडी. तो अंडर कंक्लूसिव वी आर हैविंग ए डिस्क्रिप्टिव एंड द कॉजल रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव में वी हैव टू डिस्क्राइब द थिंग्स. कॉजल रिसर्च में वी हैव टू कंडक्ट द रिसर्च बाय यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. अगर मैं नंबर ऑफ हॉस्टल्स बढ़ा देता हूं, I have been going to conduct a research, number of hostel, girls hostel increase कर दिया, how it will impact my admission. मैं फीस को कम कर देता हूँ, how it will impact my admission. मैंने स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम दे देता हूँ, how it will impact my admission. So here I have been going to find out the cause and effect, the experimental research that I have been going to conduct. So this is the basic understanding that we are having. Irrespective of any kind of research that I have been going to do, the number of different variables that would have been involved in the research. मैं कहता हूँ कोई भी सोशल प्रॉब्लम है, the students they are more addictive of this smartphone. तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए I have to conduct a one research. And whatever the research that I will conduct, उसे conduct करने के लिए the number of different parameters that would be considered by me. All those parameters are basically the variables, जिसे मैं research में variables, the dimensions or the factors that I have been going to test. ठीक है, तो इसमें basically measurement, मतलब when we talk about the computer, it is basically the binary language. It is going to understand only 0 1 0 1 0 1, nothing else it has been going to understand. Similarly, when I talk about regarding the research, it has any software or any statistical analysis, it has been taking into consideration only the number for the analysis purpose. अगर मैं उसको कोई अल्फाबेट दे देता हूं तो they are not going to make any statistical analysis. So here measurement stands for how we have been going to give the number of different codes for the number of responses that will be collected by us. So simply measurement here stands for giving a number, allocating or assigning a numbers to the number of different questions that we have been going to put in our question. Simply nothing else. Giving a code, giving a number to the questions that we have been going to collect from our respondents. Variables are basically the things that we have been going to measure. Okay, say simple मैं कहता हूँ what are your perception as far as my lecture is concerned. अब मुझे perception measure करनी है आपकी regarding me या regarding my lecture, how I can measure them. ठीक है ना, तो practically you are not going to measure me being a human being, you are going to measure the kind of qualities that I am having, the way I will deliver the lecture, the way I will share the content with you, the way I will give you some hand-on sessions. ठीक है ना, तो प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं कि वेरिएबल मेजर करना है, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि हम किसी बंदे को मेजर कर रहे हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके फीचर्स हैं या उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, वी हैव बीन गोइंग टू मेजर देम, एंड दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, दोज एट्रीब्यूट्स, दे आर कीप ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, सो सिंपली वेरिएबल्स स्टैंड्स फॉर द क्वालिटीज, the properties and the attributes of product,
place, properties and the situation that we have been going to manipulate, we are going to control, and we are going to find out their impact on the another factors. ठीक है. So SPSS में we have been going to record only the variables, जिसके बेसिस पे the analysis that will be conducted by us. ठीक है. किसी भी एनालिसिस में either we have been going to conduct a qualitative research या quantitative research, we are going to use the number of different scales. Scales stands for the questions, the statements that we are going to use in a questionnaire. ठीक है. तो we may have a 4 different categories of scales that we can use the question. आपने कई बार क्वेश्चनर फिल किया होगा लोगों का ना, जब सर्वे आता है या सेंसस भी आता है हमारे पास फिल होने के लिए, और द नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस दैट वुड हैव बीन देयर, और उसमें कई ऑप्शंस दी होती हैं, एंड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस वी हैव टू टिक वन, है ना. तो यू मस्ट हैव सीन सम द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चनर्स दैट जहां आपने जब भी ये सिम कार्ड लिया तो यू हैव टू फिल वन फॉर्म. इट इज अगेन ए काइंड ऑफ क्वेश्चनर दैट you are going to fill. तो नंबर ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन दैट वुड हैव बीन कलेक्टेड बाय देम. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ मैं क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहा हूं या क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहा हूं, तो उसमें द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्केल्स दैट वी हैव बीन गोइंग टू यूज: nominal scale, ordinal scale, interval scale and the ratio scale. Because the kind of questions, the kind of structure of the question that we have been going to use, it would indicate the kind of information that I have been going to collect. I will let you know कि nominal scale में क्या होगा, ordinal scale में क्या होगा, interval में क्या होगा, ratio scale में क्या होगा. से मुझे आपकी preferences देखनी है. What are your preferences and what are your liking as far as the soft drink is concerned? As far as the soft drinks are concerned, ठीक है. तो the chances are there are few people they are preferring to have a Limca, there are few people they are preferring to have a the Thumbs Up, there are few people they are preferring to have a Sprite or some other brands that we are having as far as the soft drink is concerned. So here I have been going to use one question. The question that would be what are your liking and what are your preferences for the soft drink, and the number of options that would be given to you, 4 or 5 options that would have been, and out of the given options you are going to click one as per your preference and the liking. ठीक है. तो here I have been going to use the nominal scale. जो nominal scale का basic objective है for getting the information is the classification and the identification. बेसिक मोटिव है नॉमिनल स्केल का क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन. मुझे आइडेंटिफाई करने हैं आउट ऑफ द गिवन पार्टिसिपेंट कितने लोगों की प्रेफरेंस है लिम्का को लेके, कितने लोगों की प्रेफरेंस है थम्स अप को लेके, कितने लोगों की प्रेफरेंस है स्प्राइट को लेके. सो आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग द नॉमिनल स्केल आई हैव बीन गोइंग टू कैटेगराइज द रिस्पोंडेंट्स. तो हियर आई हैव बीन गोइंग टू यूज द नॉमिनल स्केल. इट इज ओके बीइंग ए कंपनी, मुझे ये तो पता लग गया कितने लोगों की क्या क्या प्रेफरेंस है, बट व्हाट आर देयर सेकंड प्रेफरेंस, व्हाट आर देयर थर्ड प्रेफरेंस, व्हाट आर देयर फोर्थ प्रेफरेंस. तो दैट आई कैनॉट आइडेंटिफाई, दैट सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई कैनॉट गेट बाय यूजिंग द नॉमिनल स्केल्स. ठीक है. तो इस लिमिटेशन को जो मेरी नॉमिनल स्केल में है इसे रिमूव करने के लिए आई विल गो फॉर द अनदर स्केल दैट इज नोन एज ए ऑर्डिनल स्केल. अब मैं आप लोगों को, पहले मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपकी प्रेफरेंस क्या है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन. अब मैं आपसे इंस्टेड ऑफ आपकी प्रेफरेंस पूछने की बजाय व्हाट आई विल से, मुझे आप जो नीचे अलग अलग ब्रांड्स गिवन है या सॉफ्ट ड्रिंक गिवन है, अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंगली मोस्ट प्रेफर्ड या मोस्ट लाइक सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी है या लीस्ट कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली गिवन ऑप्शंस को एक ऑर्डर में अरेंज कर दो डिपेंडिंग अपॉन मोस्ट लाइकली और लीस्ट लाइकली. तो हियर आई हैव बीन गोइंग टू यूज द ऑर्डिनल स्केल. ठीक है जी. जब मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूं कि आपने एडमिशन लेनी है, क्या रीजंस क्या है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने का,
वो आपको आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन एक ऑप्शन दे देगा, तो इट मींस वी हैव बीन गोइंग टू यूज द नॉमिनल स्केल। मैं कहता हूं कि ठीक है, ये आपने एक ऑप्शन तो दे दी, मुझे बताओ कि मोस्ट प्रेफर्ड मतलब रीजन क्या है, मेजर रीजन क्या है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, या लीस्ट। तो यहाँ पे मैं ऑर्डिनल स्केल यूज कर रहा हूँ। आई होप नॉमिनल और ऑर्डिनल का कंसेप्ट क्लियर है आपको, ठीक है जी। चलो इट इज ओके। फिर ऑर्डिनल स्केल से मुझे ये तो पता लग गया उनकी रैंकिंग क्या है या प्रेफरेंसेस क्या है, सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ऑप्शन कौन सी है या लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन कौन सी है। बट पहले और दूसरे में फर्क कितना है, हाउ मच डिफरेंस एंड द डिस्टेंस दैट वुड हैव बीन देयर। फिर मैं पहली तो लिम्का प्रेफर कर रहा हूं, सेकंड ऑप्शन मेरी थम्स अप की है, थर्ड मेरी स्प्राइट की है। लेकिन जो प्रेफरेंस में डिफरेंस है दैट आई कैनॉट आइडेंटिफाई, किस हद तक डिफरेंस है मेरी फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। उस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए आई विल गो फॉर द थर्ड काइंड ऑफ स्केल दैट इज नोन एज ए इंटरवल स्केल। तो इसमें मैं पहले ही उसको इंटरवल दे दूंगा रिस्पोंडेंट को। कि मेरा फर्स्ट इंटरवल नॉर्मली आपने देखा होगा ना, एज ग्रुप की बात कर लेते हैं या इनकम ग्रुप की बात कर लेते हैं, हम अलग अलग इंटरवल्स बना लेते हैं, तो वो वी कैन हैव ए क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि मेरा फर्स्ट इंटरवल बिलोंग्स टू जिनकी एज ग्रुप 18 टू या 15 टू 20 है, सेकंड वाले की 20 टू 30 है, 30 टू 40, 40 टू 50। तो वी आर हैविंग ए क्लियर कट, we can easily identify how much differences that would have been there among the different intervals. तो सेम इज विद द केस ऑफ द इंटरवल स्केल, मेरे पास हर एक रिस्पॉन्स कैटेगरी में आपस में डिफरेंसेस कितना है दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 या 5 10 15 20 25 वी आर हैविंग ए क्लियर कट indication regarding how much distances and the differences that would have been there. So here in order to remove the limitation that we were having in the ordinal scale जिसमें मुझे differences नहीं पता थे, we are going to use the interval scale. Okay, but interval में भी पता लग गया, but जैसे मैंने सॉफ्ट ड्रिंक की एग्जांपल ली आपसे कि there are few persons या participants कुछ ऐसे भी होंगे जो सॉफ्ट ड्रिंक प्रेफर ही नहीं करते होंगे, लेते ही नहीं है। तो it means I must have the one option that would have been the known as a zero. They are not liking the soft drink, ठीक है। तो उस लिमिटेशन को मैं रिमूव करने के लिए आई विल गो फॉर द लास्ट स्केल दैट वुड हैव बीन नोन एज ए रेशियो स्केल। तो ओके, द थिंग्स वुड बी मोर क्लियर है ना यहां से। नॉमिनल स्केल का बेसिक मोटिव क्या है मेरा, क्लासिफिकेशन। मैंने आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ली कि आपकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, अकॉर्डिंगली यू पीपल आर द रिस्पॉन्डर्स को मैं क्लासीफाई करूंगा या आइडेंटिफाई कर लूंगा। उसमें लिमिटेशन थी आई कैन नॉट अरेंज देम इन ए ऑर्डर, उस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए आई हैव गॉन बाय द सेकंड स्केल ऑर्डिनल। उसमें मैं क्लासीफाई भी कर रहा हूं और उन्हें अरेंज भी कर रहा हूं इन वन ऑर्डर, दैट मे बी इन ए असेंडिंग ऑर्डर और दैट मे बी इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। बट ऑर्डिनल स्केल में मुझे डिफरेंसेस कितने थे या आपस में फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन का डिस्टेंस कितना है वो नहीं पता था। उस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए आई हैव यूज्ड द इंटरवल स्केल। तो इसमें मेरे पास क्लासिफिकेशन भी, ऑर्डिनल भी और डिस्टेंसेस भी है। बट यहाँ पे इंटरवल में मैंने ओरिजिन पॉइंट को कंसीडर नहीं किया था। ओरिजिन मींस जीरो ऑप्शन दैट वाज नॉट देयर इन द स्केल। उस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए आई विल गो फॉर द रेशियो स्केल, जिसमें आई हैव बीन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द ओरिजिन मींस द जीरो फ्रॉम वेयर आई विल स्टार्ट माय क्वेश्चनर या रिस्पॉन्स कैटेगरी। कोई इसमें डाउट हो तो प्रैक्टिकली चार स्केल ही हम यूज करते हैं किसी भी तरह की रिसर्च, क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड द रेशियो स्केल। सेम वे मतलब ओके, हम किसी भी क्वेश्चनर में नॉर्मली यू मस्ट हैव सीन दैट हम डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जेंडर क्या है आपका, इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया अर्बन है रूरल है, किस स्टेट को बिलोंग करते हो। दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट वी आर हैविंग इन द डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स, ठीक है। तो ये सारे ही जितने भी डेमोग्राफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम जो कलेक्ट कर रहे हैं दे आर ऑल आर बीइंग ए पार्ट ऑफ द नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल का बेसिक पर्पस क्या था मेरा,
क्लासीफाई करना, मेरे मेल्स कितने हैं, मेरे फीमेल्स कितने हैं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट कितने हैं, बीटेक ग्रेजुएट कितने हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट कितने हैं, या आर्ट्स ग्रेजुएट कितने हैं। तो ये मैं सारी इंफॉर्मेशन डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में ही तो कलेक्ट कर रहा हूं। और बेसिक पर्पस क्या था मेरे नॉमिनल स्केल का, क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ऑर्डिनल स्केल में आई हैव टू अरेंज द थिंग्स इन वन ऑर्डर। इंटरवल स्केल में आई एम हैविंग ए क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कितना डिस्टेंस है कितना नहीं है, ठीक है। और रेशो वाले में आई हैव बीन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द ओरिजिन पॉइंट, मीनिंग देयरफॉर आई हैव बीन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन 0 एज ए number for the statistical analysis for the calculation purpose, because the kind of scale that we have been going to use, it will indicate the kind of statistical analysis that we will have. मोड के बारे में हमने पढ़ा होगा 10th में भी, नॉर्मली हमने ये वाला बेसिक है the things that mean मीडियन मोड हमने किया है ना। तो मोड में क्या करते थे हम, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है या जो वेरिएबल मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए मोड। अगर आप मतलब इफ यू कैन रिकॉल कि मीडियन मोड में क्या है, मीन में क्या करते थे हम एवरेज निकाल लेते हैं, मीडियन में क्या है, एक सीरीज गिवन है उसमें जो मिडल वैल्यू दैट वुड बी नोन एज ए मीडियन, और मोड वाले में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो नॉमिनल स्केल में क्या कर रहे थे, वी वर गोइंग टू क्लासिफाई दी रिस्पॉन्सेज। तो क्लासिफिकेशन करने के बाद कौन सा रिस्पॉन्स या किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट वुड बी नोन एज ए मोड। अब मैं मेल और फीमेल्स का एवरेज तो नहीं निकाल सकता, अगर मैं मतलब मैं इतने देख रहा हूं कि मेल्स कितने हैं या फीमेल्स कितने हैं, आई हैव बीन गोइंग टू क्लासिफाई। अब इस पे मैं तो ना तो मीडियन लगा सकता हूं, ना ही मीन लगा सकता हूं, ना कोई और टेस्ट लगा सकता हूं, इट इज ओनली द मोड दैट आई कैन हैव। तो नॉमिनल स्केल में प्रैक्टिकली वी हैव बीन गोइंग टू यूज ओनली द मोड। अब किस पार्टिसिपेंट का या किस रिस्पोंडेंट का इनकम ग्रुप क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने लोगों की मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, कितने लोगों की कम क्वालिफिकेशन है, ऑल सच काइंड इंफॉर्मेशन दैट वी हैव बीन गोइंग टू क्लासिफाई एंड आइडेंटिफाई बाय यूजिंग द नॉमिनल स्केल। अब ऑर्डिनल स्केल में क्या है, मीडियन। तो इस केस में वॉट एवर द इंफॉर्मेशन और द रिस्पॉन्सेज दैट वी आर गोइंग टू हैव, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वॉट एवर द मिडल वैल्यू दैट वी विल हैव, दैट वुड बी नोन एज ए मीडियन। हाँ, इसके मीडियन के अलावा वी कैन गो फॉर द measurement that we can apply is the standardized mean that we can calculate to find out how much variations that would have been there as far as the ordinal scales that we have been going to use, ठीक है। जहां इसके ऊपर वेटेड एवरेज मीन स्कोर दैट वी कैन कैलकुलेट पी, ठीक है, अरेंज कर दिया, बट उसका वेटेड एवरेज मीन कितना आ रहा है दैट वी कैन कैलकुलेट, बट वो टेक्निकल पार्ट है। बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरा ऑर्डिनल स्केल है, मैं रैंकिंग पूछ रहा हूं, या ऑर्डिनल स्केल है तो मुझे मीडियन कैलकुलेट करना, नथिंग है। अब मैं इंटरवल स्केल की बात करता हूं तो जहां मुझे मीन, हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मैक्सिमम कैलकुलेशंस 99% कैलकुलेशंस मीन पर बेस्ड है। चाहे मुझे कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, रेग्रेशन कैलकुलेट करना है, टी टेस्ट लगाना है, जेड टेस्ट लगाना है, एफ टेस्ट लगाना है, कुछ भी काई स्क्वायर निकालना है या कुछ भी निकालना है, ऑल कैलकुलेशंस आर बीइंग बेस्ड अपॉन द मीन, ठीक है जी। तो इंटरवल वाले में वी हैव बीन गोइंग टू यूज द मीन, रेशो वाले में ज्योमेट्रिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन्स दैट वी हैव बीन गोइंग टू अप्लाई। नाउ जब मैं नॉमिनल स्केल या ऑर्डिनल स्केल यूज कर रहा हूं, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट आई विल हैव, इट विल बी इन ए डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज आपने देखी होगी ना 10th क्लास में, वन सीक्वेंस दैट वुड हैव बीन गिवन अलोंग विद द सीरियल नंबर, और साथ में एक वन सीरीज दैट वुड हैव बीन गिवन टू अस, ठीक है। तो नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स दे आर मोर कंसर्न विद द डिस्क्रीट सीरीज, बट इंटरवल और रेशियो स्केल है वो कॉन्टिन्यू सीरीज है। कॉन्टिन्यू सीरीज कैसे है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जो सेल्स है किसी भी कंपनी की, देयर इज नो एनी लिमिट
कि किस लिमिट तक वो इंक्रीज हो जाए, किस लिमिट तक वो डाउन चली जाए। तो इट इज ए कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब मैं कह सकता हूं कि किसी भी बंदे की क्वालिफिकेशन को लेके देयर इज नो एनी लिमिट एज फार एज द क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन इज कंसर्न। पीजी के बाद अदर हायर क्वालिफिकेशन के बाद व्हाट ऑप्शंस दैट दे आर हैविंग, कोई ऑप्शन नहीं है, तो वी कैन नॉट गो बियॉन्ड। तो उस केस में नॉमिनल स्केल या हमने ऑर्डिनल स्केल यूज किया जिसमें हम डिस्क्रीट सीरीज को यूज करते हैं फॉर द एनालिसिस। ठीक है, तो बेसिक है नॉमिनल में मोड, ऑर्डिनल में मीडियन, इंटरवल में मीन एंड द रेशो वाले में हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन्स दैट वी हैव बीन गोइंग टू कैलकुलेट। ये वाला पार्ट चलो। अब मेरा क्वेश्चन है, तो मैंने कोई भी क्वेश्चन तो बना दिया, अब उसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस में कितने दूं, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑप्शंस में कितने दूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डिसाइड। अगर मेरा रिसर्च प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द टीनेजर, तो वट एवर द टीनेजर एज इज देयर उसके अकॉर्डिंगली मुझे उसकी ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, अब मेरी वाली क्या रिसर्च प्रॉब्लम है, इट इज बेसिकली फॉर द ओल्ड एज पीपल, तो उसमें मैं 60 अबव वाले ही लेके चलूंगा। सो अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड कि उस रेशो को मैं कैसे डिवाइड, मतलब एज वाली रेशो को कैसे डिवाइड करूंगा। तो हियर आई हैव टू टेक फ्यू डिसीजंस कि मेरे नंबर ऑफ कैटेगरीज को भी यूज, ओड नंबर लेना है, बैलेंस लेना है या फोर्स लेना है। इवन और ओड वाले में चलो कोई डाउट नहीं है, दैट इज मोर कंसर्न विद ओड है या इवन नंबर है। द नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट आई हैव टू फुल, मुझे ओड नंबर लेना है तो आई हैव बीन गोइंग टू यूज द नंबर ऑफ ऑप्शन, 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, 8 होंगी या इवन वाले केस में सॉरी ओड वाले केस में 1 3 5 7। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मतलब कि you have to either agree or disagree with the given whatever the statement that I have been going to mention. Majority of staff members, specifically the teaching staff, they are happy with this university. Either you would have to strongly agree, disagree or strongly disagree. 4 options that would have been given to you. ठीक है, तो accordingly मतलब you will give a response, either you would agree or disagree. तो 4 ऑप्शंस मैंने आपको दी, बट द चांसेस आर देयर कि कुछ रिस्पोंडेंट्स इसको रिस्पॉन्ड करना, तो मतलब वो दे वुड प्रेफर कि चुप ही रहो यार, ना तो एग्री करना ना डिसएग्री करना मुझे, तो वो दैट वुड हैव बीन द रीजन कि मुझे इवन नंबर लेना है या ऑड नंबर लेना है, बिकॉज मुझे आपको वो भी चांस देना कि कुछ नहीं बोलना चाहते इसके बारे में। तो अगर मैं odd number लूंगा तो one option, the middle option that would be have been given to them can't say or neutral। ठीक है जी, तो accordingly I can decide कि मुझे odd number लेना है या even number लेना है। अब है balanced versus unbalanced, इसमें if you can see unbalanced वाले में surfing the internet is a either a good or a bad। So here 4 options that would have been related with the positive aspect of surfing the internet, or only 2 options that would have been given the negative or the bad part of the internet। तो it is unbalanced, मतलब 4 तो अच्छी वाली है, पॉजिटिव वाली है, 2 नेगेटिव वाली है, तो इट इज अनबैलेंस्ड। मुझे दोनों तरफ ही बैलेंस बना के चलना है, तो यहाँ पे बैलेंस वाले में 3 are related with the good one and 3 are the bad one। ठीक है जी, तो it is balanced scale that we have been going to use। force and non force, जैसे मैंने आपको पहले ऑप्शन दी, मतलब व्हाट आर इधर यू एग्री और विद द डिसएग्री, मैं आपको मिडल ऑप्शन नहीं देता। ठीक है, तो जहां तो आपको एग्री करना है या डिसएग्री करना, इट मींस मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि आप रिस्पॉन्स दो। You cannot remain
न्यूट्रल भी नहीं रह सकती और कांट से की ऑप्शन भी आपके पास नहीं, तो दैट वुड हैव बीन नोन एज ए फोर्स्ड। नॉन फोर्स वाले में आपके पास एक साइलेंट या न्यूट्रल रहने की ऑप्शन नहीं होती। सो दिस इज हाउ, दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू बी कंसीडर्ड जब भी मैं अपना क्वेश्चनियर डेवलप कर रहा हूं। ठीक है जी, आपके पास क्वेश्चनर आ गया होगा। ओके, चलो नाउ यू आर हैविंग ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है और रेशो स्केल है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस हम बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड वाले भी लेके चलते हैं, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, और फोर्स्ड एंड नॉन फोर्स्ड ऑप्शंस दैट वी आर हैविंग। तो यहां पे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, अगर मैं अपना ये फर्स्ट वाला क्वेश्चंस देखूं, ठीक है ना, आप कितनी देर से इंटरनेट कंप्यूटर यूज कर रहे हो, सिंस हाउ लॉन्ग, ठीक है, तो इसमें जो मेरे रिस्पॉन्सेज हैं ये किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे? ये नॉमिनल स्केल का पार्ट है, ऑर्डिनल का पार्ट है, रेशो का पार्ट है या इंटरवल का पार्ट है? आई हैव नॉट बीन गोइंग टू फाइंड आउट कि इसका इसमें आपस में कितना डिफरेंस है, ना ही मैं उसको ये कह रहा हूं कि इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर दो। सो प्रैक्टिकली इट इज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल। ठीक है, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि नॉमिनल स्केल में क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी भी मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो ये वाली मेरे क्वेश्चंस हैं, दीज आर द ऑप्शंस दैट वुड हैव बीन गिवन टू देम। ठीक है जी, तो ये मैं नॉमिनल स्केल यूज कर रहा हूं फॉर द डाटा कलेक्शन पर्पस। ई मार्केटिंग में देयर आर फ्यू कांसेप्ट जो हम यूज करते हैं, प्राइवेसी है, स्पाइवेयर है, कुकीज है, स्पाइवेयर है, इंटरनेट फ्रॉड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मुझे देखना है कि वो किस हद तक उससे अवेयर है या नहीं। ठीक है जी, तो नॉट एट ऑल अवेयर, समवट अवेयर, कांट से अवेयर, कंप्लीटली अवेयर। Here I have been going to use the interval. First option, second option, neutral, मतलब positive and the negative part. Here I have been going to use the interval for the data collection. Now see here, how you would prevent yourself, अपने आप को इंटरनेट फ्रॉड से कैसे बचाओगे। ठीक है जी, तो उसको रैंकिंग देनी है कि मैं शॉपिंग करूंगा या नहीं, आई विल स्पेंड लेस मनी ऑनलाइन, नंबर ऑफ, तो किसको सबसे पहले प्रेफर करोगे, सेकंड ऑप्शन क्या रहेगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इट मींस यहाँ पे मैं ऑर्डिनल स्केल दैट आई हैव बीन गोइंग टू अप्लाई फॉर द डाटा कलेक्शन। रीजन बीइंग, मैं अगर काम मेरा बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे फाइंड आउट करना है कि मेजर रीजन क्या है व्हाई कस्टमर दे आर नॉट गोइंग टू बाय ऑनलाइन। ठीक है ना, सेकंड रीजन क्या, थर्ड रीजन क्या, सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन डेवलप द स्ट्रेटजीज ताकि कस्टमर दे कैन फील सेफ व्हेनेवर दे हैव बीन गोइंग टू बाय ऑनलाइन। ठीक है, तो हियर आई हैव बीन गोइंग टू यूज द ऑर्डिनल स्केल्स फॉर द डाटा कलेक्शन। ये अगेन इंटरवल स्केल है, मुझे ओवरऑल कस्टमर की परसेप्शन चेक करनी है रिगार्डिंग ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग के बारे में क्या सोचता है, उसको मेजर करने के लिए मैंने काफी स्टेटमेंट्स बना ली। अब वो किन स्टेटमेंट से एग्री करेगा या डिसएग्री करेगा, अकॉर्डिंगली आई विल यूज द एनालिसिस। अब स्ट्रांगली एग्री करता तो मैंने उसे 1 नंबर दे दिया, डिसएग्री को 2 दे दिया, 3 को नॉट श्योर, साइलेंट रहेगा या न्यूट्रल रहेगा या कांट से की ऑप्शन दैट वुड हैव बीन गिवन टू दैट। एग्री कर गया या स्ट्रांगली एग्री कर गया, मुझे डिस्टेंसेस भी पता लग गए, हाउ मच डिफरेंसेस दैट वुड हैव बीन देयर अमंग द डिफरेंट ऑप्शन दैट वुड हैव बीन गिवन टू देम। ठीक है, तो क्वेश्चनर मैंने डेवलप कर लिया, क्वेश्चनर फिल भी करवा लिया। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर मी टू एंटर द इंफॉर्मेशन इन द SPSS और इन द एक्सेल शीट फॉर द एनालिसिस पर्पस। अभी तक कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी कि क्या है क्या नहीं है ना। तो मैंने खाली 2 ही चीजों की बात की है, स्केल और उसको क्वेश्चनर में कैसे हमने यूज किया, नथिंग एल्स। अब SPSS है क्या बेसिकली, इट इज बेसिकली सॉफ्टवेयर है, एक टूल है
which are being used by the researchers for the statistical analysis for social science है, एजुकेशन है, या कोई और स्ट्रीम। सिंपली एनालिसिस पर्पस के लिए वी हैव बीन गोइंग टू यूज दिस एसपीएस, नथिंग एल्स। इसके फीचर्स क्या है? ये डाटा मैनेज करता है। मैंने एक्सेल शीट में डाटा कलेक्ट कर लिया, गूगल फॉर्म फिल करवा लिया, वहां से आई कैन इंपोर्ट डायरेक्टली डाटा इन दी एसपीएस। मुझे एसपीएस शीट में दोबारा डाटा एंटर करने की जरूरत नहीं है, मैनुअली काम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं उसमें इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद मुझे लगता है कि उसमें कुछ एडिट करने की जरूरत है तो एडिट कर सकता हूँ, उसको क्लीन करना है, मुझे कुछ लगता है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दैट वुड हैव बीन रिकॉर्डेड तो उसको क्लीन या कुछ भी करना। सेकंड है मीन मीडियन मोड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में विद ए सिंगल क्लिक, जस्ट गिविंग ए वन सिंगल कमांड, मेरा मीन मीडियन मोड कैलकुलेट होकर मेरे सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दैट आई कैन, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल होता है जो हाइपोथेसिस बेस्ड रिसर्च है, जस्ट एनालिसिस है, दैट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ एसपीएस। उसके बाद है ग्राफ बनाना है, चार्ट बनाना है, या कुछ भी बनाना है, दैट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ एसपीएस। लास्ट है कुछ एडवांस रिसर्चेस करनी है, मतलब वेक्टर एनालिसिस या क्लस्टर एनालिसिस या टाइम सीरीज को लेके मुझे कोई एनालिसिस करना है, दैट आई कैन डू। सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन, दिस द थिंग्स दैट आई कैन डू विद द एसपीएस। ठीक है जी। अब इसमें कंटेंट दैट वी विल टॉक अबाउट, एसपीएस का इंटरफेस ये दिखता कैसे है, होता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें डाटा एंटर कैसे करना है, या मैं इसमें इंपोर्ट कैसे कर सकता हूँ, या डाटा क्लीन कैसे करना है, तो वो हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है जी। आपने एक्सेल शीट देखी है, एक्सेल शीट में मेरे कॉलम एंड रो होते हैं। ठीक है जी, रो में ऊपर मेरे पास, सॉरी कॉलम से मेरे पास ऊपर ए बी सी डी ई एफ लिखा होता है, और इधर रो वाली साइड में 1 2 3 4 नंबर। इस एक्सेल का इंटरफेस और एसपीएसएस का इंटरफेस मोर और लेस सिमिलर है। ठीक है जी। एक्सेल वाली शीट में मुझे नीचे शीट 1 शीट 2 शीट 3 गिवन होती है। ठीक है जी, नीचे। एसपीएसएस वाले इंटरफेस में मुझे दो तरह की नीचे शीट दी होगी, वन शीट दैट वुड बी नोन एज ए डाटा व्यू शीट और वेरिएबल व्यू शीट। डाटा व्यू वाली शीट में हम इंफॉर्मेशन को या डाटा जो मैंने कलेक्ट किया क्वेश्चन फिल करवाने के बाद, दैट विल बी रिकॉर्डेड। बट उसको रिकॉर्ड करने से पहले मुझे उसकी कुछ कोडिंग भी करनी है या वेरिएबल्स को एंटर करना है। सिंपल, तो क्वेश्चनर में मैंने वेरिएबल्स या स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस लिखे हैं, उसको वो एसपीएसएस में भी एंटर करना है। वो उसमें मैं एंटर करता हूं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल व्यू। तो सिंपली प्रैक्टिकली मेरे पास दो शीटें होंगी एसपीएसएस में, एक डाटा व्यू शीट होगी, एक वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में मैं क्वेश्चनर एंटर करूंगा, डाटा व्यू में मैं अपने सारे क्वेश्चनर जितने मैंने फिल करवाए हैं उसको रिकॉर्ड करूंगा या उसको एंटर करूंगा। सिंपली जब भी आप एसपीएसएस वाला सॉफ्टवेयर खोलोगे, ओपन करोगे, अगर है तो यू कैन डू राइट नाउ, है ना, जिन लोगों के पास है। हाँ, दैट इज मतलब दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन। जब मैं थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे देता हूं, देन वी विल हैव ए मतलब हैंड ऑन हैंड, ये कर लो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, है ना। तो जब भी आप एसपीएसएस वाला सॉफ्टवेयर खोलोगे, दिस इज द इंटरफेस दैट यू विल हैव ऑन योर स्क्रीन। आपके लैपटॉप के ऊपर दिस इज द इंटरफेस दैट यू विल हैव। करना कुछ नहीं, इसको क्रॉस कर देना एंड यू विल हैव द एक्सेल शीट ऑन योर लैपटॉप। जब मैं डाटा एंटर कर लूंगा, दिस इज द इंटरफेस और दी ओवरव्यू दैट वी विल हैव। रिकॉर्ड करने के बाद एक्सेल शीट में तो हम इसी तरह की नजर आती है ना, तो दिस इज द काइंड ऑफ द डाटा शीट दैट वी विल हैव इन द एसपीएसएस। मैं बात कर रहा था कि हमारे पास ये बेसिकली वो है मेरी एसपीएसएस की। मैं कह रहा था मेरे पास नीचे दो तरह की शीट होगी, एक डाटा की शीट होगी, एक वेरिएबल व्यू। तो डाटा वाले में
we will have the rows, columns and the variables that we have been going to record. तो ये मेरा डाटा व्यू शीट है। वेरिएबल व्यू वाले में इस तरह की मेरी वेरिएबल व्यू, ठीक है, जिसमें मैं सारे वेरिएबल्स या जो मेरे क्वेश्चंस, अगर सिंपली मतलब वो बोलूं कि जितने भी मेरे क्वेश्चंस है मेरे क्वेश्चनर में वो मैं एंटर करूंगा इन दिस वेरिएबल व्यू शीट में। तो जहां पे मेरे पास we were talking about the variables क्या है, variables are basically the qualities that we have been going to record। हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि मुझे परसेप्शन देखनी है, तो इट मींस आप मुझे मतलब मेजर नहीं करे, मेरी जो क्वालिटीज हैं, जो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, उसको मेजर कर रहे हो, ठीक है। उन सब चीजों को हमने रिकॉर्ड करना है इसमें। आफ्टर रिकॉर्डिंग, आफ्टर एंटरिंग द वेरिएबल्स इन द SPSS, छोड़ो प्रैक्टिकल करते हैं। ये मेरे लैपटॉप का स्क्रीन है, सिंपल है। SPSS खोलना है तो खोलो आप। मैंने SPSS की कमांड दी है। दिस इज द इंटरफेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो मेरे पास इंटरफेस आएगा, यही बताया था ना, इस तरह का इंटरफेस दैट विल ओपन जब मैं अपना SPSS खोलता हूँ, ठीक है जी। इसे मैंने क्रॉस कर दिया, बंद कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे ये नीचे इफ यू कैन सी डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू शीट है। वेरिएबल व्यू में मैं यहाँ पे सारे वेरिएबल्स जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास वो सारी रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। वंस इट हैज बीन ओके, से फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं एज आ गया, जेंडर आ गया, ठीक है जी। तो जैसे जैसे मैं यहाँ वेरिएबल्स के नाम देता जाऊंगा, जो मेरे क्वेश्चनर में इंफॉर्मेशन है, जो भी फॉर्मेट है, तो आई विल कीप ऑन रिकॉर्डिंग ऑल दी वेरिएबल्स। अब होगा क्या, अब मैं डाटा व्यू में जाता हूँ तो वो वेरिएबल्स मेरे यहाँ पे डिस्प्ले हो सकता है, एज, जेंडर, सो जो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा इन दी वेरिएबल व्यू शीट, ठीक है जी। लेकिन मैंने नॉमिनल स्केल यूज किया है अगर, तो इट मींस मुझे, बिकॉज जो SPSS है ये अल्फाबेट तो कैलकुलेट नहीं करेगा, उसको नंबर ही देना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू, जब नॉर्मली आप लोग करोगे मेल्स को 1 दे दिया, फीमेल्स को 2 दे दिया, ठीक है ना, कोडिंग दैट वी हैव टू डू। ओके, एक चीज यहाँ पे जो मैंने इंफॉर्मेशन ये वाली कलेक्ट की है एज से रिलेटेड, वो किस तरह की इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंगली आई हैव टू, बाय डिफॉल्ट इट विल बी न्यूमेरिक, तो मुझे इसको चेंज नहीं करना, बिकॉज मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दैट वी हैव बीन गोइंग टू यूज इन द SPSS इट इज ए न्यूमेरिक डाटा दैट वी हैव बीन गोइंग टू यूज। तो बाय डिफॉल्ट इट इज न्यूमेरिक, तो मैंने इसको कुछ नहीं करना। अब विड्थ कितनी है या लेंथ कितनी है किसी भी कॉलम की, बाय डिफॉल्ट इट इज 8, वी कैन रिड्यूस, वी कैन एज पर आर रिक्वायरमेंट, तो बाय डिफॉल्ट इट इज 8, तो मैं इसको 8 ही रहने देता हूं, ठीक है जी। डेसिमल्स, ओके, गिव यू वन एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल मैंने जो फर्स्ट मेरा एज ग्रुप है उसको मैंने 2 नंबर दे दिया, तो यहाँ 2.00 आ रहा है मेरा, ठीक है। डेसिमल वाले में जाके मैं इसको 0 कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे रखने को, अगर मैं फाइनेंस की एग्जांपल हो, अगर फाइनेंस से रिलेटेड मुझे रिसर्च करनी है तो वहां पे मेरे पास फिगर लैक्स में, करोड़ में या थाउजेंड्स में आती है, ठीक है ना। तो मुझे वहां पे तो डेसिमल्स चाहिए हो सकते हैं, बट बीइंग ए मतलब मार्केटिंग या बाकी अदर स्ट्रीम्स में, एजुकेशन में, वी आर नॉट गोइंग टू यूज ए ह्यूज अमाउंट और द फिगर्स फॉर द कैलकुलेशन, तो वी कैन रिड्यूस, फिर मुझे यहाँ पे 0 कर दे। 0 करने से व्हाट विल हैपन, वहां पे 2.00 था और नाउ इट इज ओनली 2, ठीक है जी। लेबल के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। हाँ, हियर इट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो कोडिंग है, मैं इसे डबल क्लिक किया तो मेरे पास ये विंडो ओपन होगी। व्हाट आई विल डू, 1, इसे मैं कहता हूं मेल, ऐड कर दिया, 2
सॉरी ऐड कर दिया, इसके बाद ओके कर दिया। इसका भी 0 कर देता हूँ। चलो, तो ये मेरा ओके। एक चीज और देखना, मैं यहाँ पे तो वेरिएबल एंटर कर रहा हूँ और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में द नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस दैट वुड बी देयर। तो मैंने ये वाला जितनी भी रो है, इट वुड बिलोंग्स टू द वन क्वेश्चन, इट विल बिलोंग्स टू द वन क्वेश्चन। जब मैंने एक पार्टिसिपेंट से या एक रिस्पोंडेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की with the help of questionnaire, it will be recorded in this row only. तो second row है that will belongs to the second person। अब जो first बंदा था उसकी एज कितनी थी, जो भी उसने second option ऑप्ट की होगी, that I have been recorded here। वो मेल था या फीमेल था, accordingly the options that would have been recorded। So कहाँ चले गए? तो मेरा जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट का जो भी जेंडर था, अकॉर्डिंगली उसको मैंने कोड दे दिया। अगर फीमेल्स का तो 2 दे देता, मतलब जो मेरे क्वेश्चन में फिल होके आया। ठीक है जी। अगर द चांसेस आर देयर, जब मैं क्वेश्चनर फिल करवा रहा हूँ, रिस्पोंडेंट ने कोई इंफॉर्मेशन फिल नहीं की, जब बाय मिस्टेक मेरे से मिस हो गई, तो आई हैव द ऑप्शन कि जितने भी कॉलम अनफिल्ड हैं या मिसिंग है, उसको वो एक अलग नंबर से इंडिकेट कर दे। मैं कहता हूं ताकि सो दैट इट इज इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये वाला कॉलम ना मिसिंग है अभी। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे मिसिंग में कोई अपना आइडेंटिफाइड नंबर लिख दे देता हूं, जब मेंशन कर देता हूं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इट इज बेटर कि ये हम फर्स्ट वाली ऑप्शन को ही रखेंगे जो नो मिसिंग, बिकॉज मिसिंग तो मुझे चाहिए ही नहीं। अगर मिसिंग इंफॉर्मेशन है तो मेरी कैलकुलेशन नहीं आएगी। ठीक है जी। अभी तक तो बताया मैंने, मुझे उसके बारे में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, वो बताओ फिर मैं तभी आगे जा पाऊंगा। फिर हाँ जी, जो आपकी पहले लेवल स्केल के बारे में बताया, हाँ जी, हाँ जी, 5 या 4 वो 5 कैनवस से बीच में ऐड कर रहे हैं, 5 पॉइंट लेवल स्केल होती है। हाँ जी, इसको एक्सप्रेस करने का बेस्ट वे जब हम इंटरप्रेट करते हैं, तो क्या हमें ऑड नंबर से स्टार्ट करना चाहिए या हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 1 स्टार्ट करना है? एंड सेकंड क्वेश्चन सर, इसमें अगर कुछ रिस्पोंडेंट्स कैनवस से या कोई भी ऑप्शन को चूज नहीं करते, तो दे वांट 100 रिस्पोंडेंट्स है, 100 में से 40 20 में स्ट्रांगली एग्री और डिसएग्री करते हैं। हाँ जी, दो ऑप्शन चूज नहीं किए, तो उसमें सर हम इंटरप्रिटेशन में ये मेंशन करेंगे कि दो ऑप्शन बिल्कुल चूज नहीं किए गए। नहीं पता क्या, चलो मैं इसमें बताता हूँ। जब हम आगे जाएंगे ना, हम बात करते हैं कि जो दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेस्ट, जो मैंने टेस्ट अप्लाई करना है। मान लो मैंने फैक्टर एनालिसिस लगाना है, रिग्रेशन रन करना है, या क्लस्टर एनालिसिस रन करना है, एट फ्यू प्लेसेस एनोवा भी लगाना है। इन सब टेस्ट की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मेरा डाटा नॉर्मलाइज होना चाहिए। नॉर्मलाइज होना चाहिए मतलब इट इज नॉट लाइक दैट कि मेरे मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज है वो वन साइडेड है। जैसे आपने बोला, मैं कहता हूं मैंने स्ट्रांगली एग्री या डिसएग्री की ऑप्शन तो दोनों दी, बट मेजॉरिटी ऑफ पर्संस दे हैव ओनली एग्रीड, तो वो मेरा डाटा सेट सिक्योर्ड हो गया, मतलब वन साइडेड हो गया।
वो मेरी बेसिक टेस्ट की अजम्पशन को मीट नहीं कर रहा, सो देयरफॉर आई कैनॉट गो बाय दिस टेस्ट। ठीक है जी। अब आपने जो पूछा कि मतलब इधर आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द 1 और आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द 5, अगर मेरा 5 पॉइंट डिक्ट स्केल है तो उसमें देयर इज ए वन रूल ऑफ थंब जो स्ट्रांगली डिसएग्री है, जो लोअर पार्ट ऑफ द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स कैटेगरी है उसको छोटा कोड ही देना है मुझे। मतलब 1 फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 फॉर डिसएग्री, 3 फॉर न्यूट्रल, 4 फॉर एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री को 5, नेगेटिव वाले को 1, पॉजिटिव वाले को हायर 5। ठीक है जी। तो वेरिएबल एंटर कैसे करने हैं? वंस इट हैज बीन एंटर, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जितने भी आएंगे तो उन्हें मैं रिकॉर्ड करता जाऊंगा। ठीक है जी। whatever the options that we are having। अब इसमें भी चांसेस आर देयर, अगर आप इसे देखोगे मैंने वहां पे कोडिंग की थी सिर्फ, अच्छा उल्टी की थी कोडिंग की, अच्छा चलो बाय मिस्टेक कॉपी। जेंडर के बाद मैंने कोडिंग की हुई है मेल और फीमेल को लेकर। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, क्लिक किया यहाँ पे, मतलब देयर इज वन अनदर ऑप्शन, मैं कोडिंग किया बट मुझे देखना कि कोडिंग किसकी क्या हुई है, ठीक हुई है या नहीं हुई। तो हियर 1 and 1 ऑप्शन थी, यहाँ पे 4 ऑप्शन थी, 4 ऑप्शन की तो कोडिंग वहां थी ही नहीं, तो देयरफॉर इट हैज नॉट बीन चेंज्ड इनटू द अल्फाबेट। मैंने जेंडर वाले में सिर्फ 2 ही उसको कोडिंग करके दी है, 1 नंबर आए तो मेल, 2 नंबर आए तो फीमेल, ना तो 3rd की थी ना 4th की थी, और ना ही एज वाले में मैंने अभी ऐसे वहां कोडिंग की है। तो इट मींस मतलब ओनली 2 अल्फाबेट्स दैट विल बी गिवन हियर। तो अभी तक खाली क्या है, मैंने वेरिएबल एंटर कैसे करना है, वंस इट हैज बीन एंटर्ड वी हैव बीन गोइंग टू एंटर द इंफॉर्मेशन। कोई अभी तक कोई मतलब वो है कोई प्रॉब्लम तो बताओ। वेरिएबल व्यू में डाटा एंटर करना है, वंस सारे ही वेरिएबल एंटर कर दिए मैंने जितने भी मेरे पास हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैं डाटा व्यू शीट में जाके अपनी सारी इंफॉर्मेशन को मैन्युअली रिकॉर्ड करूंगा, जो भी मैंने अपने क्वेश्चनर के ऊपर कोडिंग दी है। मैंने क्वेश्चनर के ऊपर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस थी ना, तो 1 2 3 4 5 दे दी, जिसको भी अगर रिस्पोंडेंट ने टिक किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मैं 4 5 3 या जो भी ऑप्शन उसने पिक की थी उसके अकॉर्डिंगली मैं इंफॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्ड करूंगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? क्लियर है? एक तो ये तो था कि मैन्युअली सारा कुछ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब सेकंड है कि मैंने गूगल फॉर्म से अपना क्वेश्चनर फिल करवाया, जहां एक्सेल शीट में मैंने पहले सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली, अब उसको मैंने इसको इसमें इंपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, मैं इसे बंद कर रहा हूं। ये मेरी ब्लैंक एसपीएसएस शीट आ गई। ठीक है, फाइल्स में गया, ओपन डाटा। अब मुझे एक्सेल शीट में से लेके आना है, तो हियर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फाइल टाइप क्या मुझे एक्सेल वाली चाहिए। ठीक है जी। अब उसकी लोकेशन कहाँ पे है वो मुझे देखनी है। जहां पे मैंने एक्सेल शीट रखी है, जहां पे मेरी एक्सेल शीट पड़ी है। ठीक है जी, मैंने इसे डबल क्लिक किया। ओके, ऑल द डाटा जो मेरा एक्सेल शीट में था इट विल इंपोर्टेड इन द एसपीएसएस शीट। ठीक है जी। अब इसको मुझे सेव कर लेना है, सिंपल है, कंट्रोल एस कर लो। ठीक है जी, जहां
बंद करूंगा तो ये मुझे ऑप्शन पूछेगा जस्ट सेव करने की, जस्ट करना है, और जहां पर भी मुझे जो सेव करना है तो मेरा सारी एक्सेल शीट का जो इंफॉर्मेशन है एसपीएसएस शीट में वो सारा इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। एक चीज और, अगर आप वो वाली शीट खोलोगे, इंपोर्ट फाइल है ना, मेरी फर्स्ट वाली जो रो है वो कौन सी है, बिकॉज वहां पे मैंने पहले एसपीएसएस में वेरिएबल व्यू में जाके सारे वेरिएबल एंटर किए थे। ठीक है, उसके बाद डाटा व्यू में जाके उसको मैन्युअली रिकॉर्ड करने के बारे में बात की थी। ठीक है, इस एक्सेल शीट में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, तो मेरे फर्स्ट वाला रो है, वहां पे अगर मैं ऑलरेडी वेरिएबल्स को नाम दे के चल रहा हूं, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, मान लो मैंने पहले 3 वालों को तो नाम दिया हुआ है, बाकी के केसेस में इट इज ओनली दी एब्रिविएशन और दी कोड्स दैट वुड हैव बीन यूज्ड बाय। अब मैं एसपीएसएस वाली शीट देखता हूं जिसमें मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की, सिर्फ पहले 3 का ही नाम। ओके, यहां से देख लो आप, पहले 3 का ही नाम दैट वुड हैव बीन देयर इन द वेरिएबल व्यू शीट। बाकियों को जो भी ऊपर फर्स्ट रो में M1, M4, M3 व्हाटएवर द कोड्स दैट वुड हैव बीन देयर, वो उसने ऐसा जो वहां से उठा लिया। एक चीज और जो मिस हो गई मेरे से, मान लो मैं यहां पे रिकॉर्ड करता हूं, मैं कहता हूं एज, स्पेस डालने के बाद मैं ग्रुप लिख रहा हूं, वो उठाएगा नहीं। वेरिएबल ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी। तो मुझे रनिंग में वहां पे पॉपुलेशन इन इंडिया एक्सेल शीट में स्पेस के साथ था, तो लेकिन इसने सबको मर्ज कर दिया। ये देखो, पॉपुलेशन इन इंडिया, देयर इज नो एनी स्पेस इन दिस। ठीक है, बट बिकॉज इट वुड बी वेरी कंफ्यूजिंग, जब मैं एनालिसिस वाला पार्ट करूंगा, सब वहां पे लिखा है पॉपुलेशन इन इंडिया, मीनिंग नहीं समझ लग रहा व्हाट एग्जैक्टली इट हैज बीन। तो व्हाट आई कैन डू, नीचे करके देता हूं, मैं क्या करता हूं, एज ग्रुप बोला था मैंने, अंडरस्कोर डाल के नाउ इट विल एक्सेप्ट दी, नाउ इट वुड बी इजी फॉर, जब मेरा एनालिसिस या आउटपुट फाइल आएगी एनालिसिस करने के बाद, आई कैन इजीली आइडेंटिफाई कोई मतलब मीनिंग क्या है। एज ग्रुप जब मर्ज होके आएगा तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो ये स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता, वी हैव टू यूज द अंडरस्कोर फॉर मतलब यूजिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, एक चीज और, यहां तो कोई डाउट हो अभी? ठीक है जी। जैसे M4 है, जैसे मैंने बताया कि वेरिएबल्स नेम दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द स्पेस, मैं अंडरस्कोर भी, मैंने एक फुल सेंटेंस है और एक सेंटेंस में 10 to 12 वर्ड्स है, और हर एक के आगे स्पेस डाल के मतलब अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो अगेन इट मतलब लुक्स वेरी ऑड, है ना। तो व्हाट वी कैन डू, मैं इसको M1 ही रखता हूं। ओके, एक चीज और आ गई, और यहां पे लेबल वाले में मैं इसको पॉपुलेशन इन मी, पॉपुलेशन इन इंडिया लिख देता हूं। ठीक है ना, जब मेरा एनालिसिस पार्ट होकर आएगा मैं बताता हूं, M1 है मेरा, फ्रीक्वेंसी में पहले की बैठो, पहले की निकालो, ये मेरी आउटपुट फाइल है। मैंने M1 कोड दे दिया था फर्स्ट वाले को, तो मेरे पास यहाँ पे M1 लिखा आ गया। कितने लोगों ने 1 2 3 4 ऑप्शंस चूज की है, अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी है मेरे पास।
बट जब मैं इंटरप्रिटेशन करूंगा मेरे पास आउटपुट फाइल सामने आएगी, तो इट विल मतलब जब मैं M1 M2 M3 लिख रहा हूं तो मुझे शायद इंटरप्रिटेशन करने में बड़ी दिक्कत आए, ठीक है ना। आई वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड यार M1 M2 M3 क्या मीनिंग क्या है का। जब एग्जामिनर के पास भी जब मेरा जाएगा थीसिस, तो उसके लिए भी यार M1 को लिख क्या रहा है, इंटरप्रिटेशन कर किस चीज की रहा है, तो उसे रिमूव करने के लिए कंट्रोल जेड उस केस में मैं जो भी लेबल दूंगा यहां पे वर्ड लिखूंगा, ठीक है ना, इट विल अपीयर ऑन द आउटपुट फाइल ऑफ द एनालिसिस। मैंने चलो ये लिख पॉपुलेशन इन इंडिया लिख दिया, मैं दोबारा एनालिसिस करता हूं उसी चीज का ही, ठीक है जी। नाउ सी, पहले मेरे पास M1 लिखा था, लेबल में मैंने जो डिस्क्रिप्शन उसको दे दी या लेबलिंग उसको दे दी, इट विल अपीयर एट द टॉप ऑफ द टेबल। नाउ इट इज इजी फॉर मी टू मेक द इंटरप्रिटेशन एंड इट वुड बी इजी फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड कि किसके बारे में ये इंटरप्रिटेशन लिख रहा है बंदा, ठीक है जी, ठीक है। तो देयर आर कोड यूज करना हमने, यहां पे कोडिंग कर दी, यहां पे उनकी लेबलिंग कर दी हमने, ठीक है, सो दैट इट इज इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। वन थिंग मोर, जो कोड मैं ऑलरेडी यूज कर चुका M1 M2 M4 वट एवर द कोडिंग दैट वुड हैव बीन गिवन, मैं रिपीट नहीं कर सकता। से फॉर एग्जांपल मैं इसको भी M1 लिखता हूं, M1, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डुप्लीकेसी शो कर देगा, ठीक है जी। इट इज ऑलरेडी देयर इन दी, बिकॉज वो एक बार कोई भी कोड या एब्रीविएशन सिर्फ एक बार ही लेगा, सेम एब्रीविएशन वो नहीं कंसीडर करेगा। अभी तक कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। मैंने दो चीजें बताई अभी, वेरिएबल्स व्यू में वेरिएबल्स को एंटर करना, वेरिएबल एंटर करने के बाद हमें डाटा एंटर करना, ये वो मैन्युअली किया है। सेकंड वाज रिगार्डिंग हाउ वी कैन इंपोर्ट द फाइल्स फ्रॉम द एक्सेल शीट, ठीक है। सेकंड मतलब ये कुछ बेसिक चीजें पे डेसिमल या लेवल्स, हाउ इट विल मेक द सेंस जब मैं आउटपुट फाइल जनरेट करूंगा। ओपन डाटा, ठीक है। यहां पे मेरे पास नीचे बाय डिफॉल्ट फाइल टाइप, ये मुझे एक्सेल वाली करनी है, या जिस भी फॉर्मेट से मुझे इंपोर्ट करना है एक्सेल से करनी है, और वो फाइल की लोकेशन जहां भी वो किस फोल्डर में किस ड्राइव में जहां भी पड़ी है, डबल क्लिक किया, ये वाली ऑप्शन विंडो आ जाएगी, इसको ओके कर देना मैंने, तो ठीक है जी। वो सारा बिकॉज इट इज बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी ओपन है, तो ये आपको ओपन कर दी, ठीक है। अब सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास एक्सेल शीट में थी, नाउ इट इज इन द SPSS शीट, ठीक है। बट है ना, जो फर्स्ट रो में वट एवर दी वेरिएबल्स दैट वुड हैव बीन रिटन इन द एक्सेल शीट, वो तो यहां पर आ जाएगा, लेकिन जो वैल्यूज थी वी हैव टू गिव देम सेपरेट कोडिंग। अब मैं कहता हूं जो फर्स्ट ऑप्शन थी मेरी, मैं कहता हूं वो दैट इज स्ट्रांगली डिसएग्री, सेकंड डिसएग्री, थर्ड न्यूट्रल, फोर्थ एग्री। मैं एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं, बट हियर यू कैन मतलब राइट फुल नेम, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एक्सेट्रा। फिर स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। तो मैंने लिकर्ट स्केल यूज किया, लिकर्ट स्केल में सिर्फ 5 ऑप्शंस ही ली, तो अकॉर्डिंगली कोडिंग कर दी, ठीक है। नाउ सिमिलरली बाकी जितनी भी मेरे पास और कोडिंग्स थी तो वो कर लूंगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और कहता हूं कि रेस्ट ऑफ द अदर
कंट्रोल भी कर दिया, तो वहां पर भी अगर वो मेरे रिस्पॉन्सेज सेम है तो कॉपी पेस्ट आई कैन डू इन द SPSS शीट। नाउ हियर, नाउ आई कैन हैव, है ना। पहले नहीं शो करता बिकॉज पहले कोडिंग थी नहीं इसके पास, जो अभी मैंने वहां जाके एंटर करके की, यहाँ पे किया ना जो वैल्यू, इट वाज नॉट देयर अर्लियर, तो ये मुझे सिर्फ नंबर ही बताता, रिस्पॉन्सेज नहीं बताता, बट नाउ इट हैज बीन डन। तो यहाँ पे मतलब आई कैन हैव किसका, किस कोड का क्या मीनिंग है क्या मीनिंग नहीं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम हो आपको? ठीक है, दो चीजें, मैनुअली एंटर करना, सेकंड इंपोर्ट करना। द थर्ड थिंग इज कि क्या जो मैंने इंफॉर्मेशन SPSS शीट पे है करेक्ट है, कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है, या द रॉन्ग, मैंने 5 लिखना था जब बाय डिफॉल्ट इट हैज बीन टाइप्ड 55, जब 4 लिखना था इट हैज बीन टाइप्ड 40, जब वो या एनी अदर नंबर दैट वुड हैव बीन एंटर्ड बाय मी, उस चीज को कैसे चेक करना। ऐसे भी वर्क कर रहा हूं। इट सीम्स टेक्निकल बट वंस यू आर हैविंग हैंड ऑन प्रैक्टिस तो इससे इजी काम कुछ नहीं है। कहाँ आप एक्सेल में मतलब डिफरेंट फॉर्मूला से लगा के यू विल मेक द कैलकुलेशन, और यहाँ पे वी आर हैविंग जस्ट सिंगल क्लिक के साथ चाहे मीन निकालो, मोड निकालो, रेग्रेशन निकालो, कोरिलेशन निकालो, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, कुछ भी लगाना है, जस्ट बाय हैविंग ए सिंगल क्लिक वी कैन हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। चलो मैं दोबारा इंपोर्ट कर रहा हूँ फाइल को, ओपन डाटा सेट, यहाँ पे मेरी